Hello viewers and welcome to The Nation Wants to Know. Last week, Kangana was on the program and she spoke about the Sushant Singh Rajput case and she unleashed a storm. And the focus is now on the circumstances of Sushant's death. I won't call it suicide. We're not convinced. Bollywood is shaken up and Bollywood has got divided into camps. Those who are with the big production houses and those who are with Kangana. And the conversation has become so much larger today as all the dirty details of Bollywood come to the surface. And joining me today on The Nation Wants to Know is someone who is a man who is on the inside, a man who speaks his mind, at least so far, and who has not been known to be meek. With me is actor and politician Shatrughan Sinha, more famously known as Shotgun. Shotgun Sinha, hello, good evening and welcome. Good to speak to you after a long time. Good evening. So first of all, thank you for joining me and it's good to talk to you once again, Shotgun Sinha. I hope you're well. How are you doing? I'm fine, thank you, Arnav. And I would like to tell you, besides being a politician and also an actor, I am also a gentleman. Yes, so am I. I'm not a hardcore politician, though. Yeah. So am I. I'm also a gentleman. I hope you believe that I am. Of course, you are indeed. Indeed, of course. You know, since we have begun with this, I have no idea why you had to say that at the start. I never said you were not. But tell me one thing. Let me cut to the chase. You're from Bihar. Sushant was from Bihar. You made it big. Sushant struggled. He made a place for himself. You've spoken about how your struggles are similar. But the expectation would have been that you would have been the first to come out and really be speaking as loudly, if not more loudly, than Kangana has. Why haven't you? To begin with, I've already made my point very clear. I only speak when I was spoken to. I was asked about him. I have tremendous love and regard for his family. Also, I met him only once. Sushant Singh Rajput, but I found him a thorough gentleman, a very kind human being, a very committed, a very intelligent, sharp, wonderful human being, and also his family. I hold them in very high esteem, though I hardly know them. I only know them through some of my friends, common friends, and they all talk very high of the family. And also my friends from Patna, Bihar, just as you called him, he's certainly son of the soil. He comes from Bihar, he's Patna ka ladla, and everybody talked very high of him. Ki dekho, kaise self-made hai, kaise aap. When he met me, he told me, you have been a source of inspiration for me. When I came over here, I thought when you can do it, and some other seniors have done it, why can't I? I was very impressed by his behavior, his culture, his approach, and he made it. He made it through. जब वो आए यहाँ पे तो you can call him really a self-made man. He only ultimately people say he fallen into the trap of some group, which I don't know. मेरे और उनके बीच में बहुत seniority का फर्क था और सो उम्र का फर्क है. And you know, he like my son, like our son. He 34 years old. I was aghast. I was एकदम heartbroken कि इतना young लड़के को क्या हुआ कि इसको suicide करनी पड़ी. Suicide is no solution. In fact, suicide is the biggest problem. As far as Kangana is concerned, Kangana Sevi, I hardly met her, but I admire her. I hold her in high esteem because Kangana also, besides being a very intelligent, very sharp girl, she has dignity and she has a struggle on her own and she has made it absolutely on her own without any left, right or center support. So, Kangana has spoken and people have shown me your show. I think it was just done today, 2-3 years back. She was very impressive, very good as usual. Arnav, मैं सिर्फ फिल्मों में हूँ. As I said, मैं politics में भी रहा. I have been away from here, from the scene. यहाँ, Delhi, Bihar, Patna. So I have been touring. I have been moving around. So मुझे उतनी ज़्यादा जानकारी विषय की नहीं रही है और विषय की जानकारी अगर मुझे नहीं रही है तो मेरा हक बनता है, फर्ज बनता है कि विषय की गहराई पे ना जाऊं, उसकी सीमा में ही रहूं और इसीलिए मैं शुरू में नहीं आया लेकिन जब हमसे लोगों ने पूछा
तो जितना मैं जानता था जानकारी के आधार पे, या मैं जितना मानता था अपने सुशांत सिंह राजपूत को, या जितनी कदर करता था मैं अपनी और करता हूं उनके फैमिली की, उस आधार पे बात की। वो भी अपने घर का छोटा बेटा। First thing, how do you know it's a suicide? I mean, there's no suicide note. That's a version which is being given out and fed to the media. It's a version which is being given out. See, even you believe it's a suicide. There's no, you can't prove it to the T that it's suicide. So first, I wanted to clarify on that. Second point I want to mention to you, Shotgun, is that, you see, a certain production house, I'm told YRF, with whom he had a 3-film deal, ended the contract after 2 films and sidelined him so that plum projects go to those from their own coterie. This is not nepotism, it's a crime, isn't it? I mean, why don't you speak up? If you don't speak up about it, then who will? Or are you not trying to ruffle any feathers? You see, when you came into the industry, you were an unconventional artist. May I remind you, as one of your greatest fans, you played unconventional roles. People didn't know, is he a villain or is he a hero? He broke through. You did everything in an unconventional way. Why should you not speak up against YRF and say that, to end a fantastic talent's 3-film deal and sideline him, as is being alleged, is wrong? That's wrong. I'm speaking, Arnav. It's I'm wrong. speaking You should not be worried about ruffling any feathers. Ruffle the feathers, Shotgun. That's what people expect from you. देखिए, मैं हमेशा इनजस्टिस के खिलाफ बोलता रहा हूं, हमेशा इनजस्टिस के खिलाफ बोला है मैंने, चाहे रियल लाइफ में हो कि रियल लाइफ में हो। यहाँ पे जब मुझसे पूछा गया है, जब बात की है, यू आर टॉकिंग टू मी नाउ एंड आई एम आंसरिंग इट, मैं बोल रहा हूं यहाँ पे, मैं सर्टेनली इनजस्टिस जो हुआ है, पहली बात तो सुसाइड पे बोल दूं, मुझे नहीं पता, बिकॉज मैं विषय की गहराई पे नहीं गया, मुझे वही पता है जो मुझे बताया गया है, तो मीडिया के जरिए या उनके कुछ रिश्तेदारों के जरिए हमारे कुछ लोगों को बताया गया है। इसीलिए मैंने बाद में कहा था, any further inquiry or investigation. But there is a, sorry to interrupt. You see, Shotgun, you have said that only God knows what prompted a handsome, young, talented superstar like Sushant Singh Rajput to take his life. But why are we unnecessarily dragging the issue? Suddenly everyone is Sushant's friend, offering 2 bits on him. My question is, people are rushing to call it a suicide. How can the case be closed when questions remain on whether all the CCTVs in Sushant's complex were shut on the night before his death? The duplicate key of Sushant Singh Rajput's house was allegedly missing. There is no trace of Sushant's handprint on the green cloth in which Sushant had hanged. His handprint is not there on the cloth with which he hanged. Did somebody else put it around him? See, why are we in a rush to call it a suicide then? Are these not legitimate questions? I'm not calling it a suicide. I'm only calling it, when you people are saying, rather when the media has been saying that. I'm not saying it. I still don't believe it. So I hold myself, okay. You are not saying, but the media said so in the beginning, if you remember. And also the family people, they said कि बात कुछ में से कुछ लोगों ने कहा कि बातों को बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है, जाने वाला हमारा लाडला चला गया, अब वो इस दुनिया में नहीं है, अब या तो वो हम लोग तो पीसेस में आ जाएंगे, लेकिन रेस्ट इन पीस, ये उनके फैमिली के कुछ लोगों ने कहा। इसलिए मैंने कहा कि अब जो भी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए हमारे बच्चे के लिए, वो होनी चाहिए उनके परिवार की मर्जी से। No, I respect it, but the family may not be able to pick up all the fights. These are very powerful people. People like you need to speak. You can't push it to the family. See, Shotgun Sinha, Shekhar Suman says that Sushant Singh changed 50 SIM cards in a month. Is this normal? Should there not be an investigation on that? Shekhar Suman. Shekhar Suman says what? That Sushant Singh changed 50 SIM cards in a month. Okay, that I haven't heard that. Shekhar is a very nice person, Shekhar Suman. I think he's in Patna only. He's quite close to the family. He was also very worried. The way he was talking, he was also very concerned. But let me tell you what you said. If you say that there's more than meets the eye, अगर लगता है कि सुसाइड है और या सुसाइड नहीं है, ये इन्वेस्टिगेशन है,
तो मैं वहां पे अपनी बात को रोक लेता हूं। अब मैं कहूंगा कि जब तक ये मामला लॉजिकल कंक्लूजन तक ना आ जाए तब तक इसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए। Mukesh Bhatt projected him as quote unquote unstable, compared him to Parveen Babi. What is your view on that? Should these things be done? Don't play safe, please. Don't play safe. No, since I told you, I do not know. Is it I've fair? not been very. Is it? I'm telling you. If he has said, if it has been said, no, it's not fair, I would say. ये किसी के बारे में you can't be judgmental, you can't start issuing certificates, किसी को डिप्रेस करने के लिए या किसी को परेशान करने के लिए, फ्रस्ट्रेट करने के लिए उसको। लेकिन साथ साथ एक चीज और कहना चाहूंगा अर्णव, कि ये बहुत सारे लोग, बहुत सारे, नॉट ऑल, जो आज इतनी बातें कर रहे हैं, कल अगर उसको डिप्रेशन था, उसको प्रॉब्लम्स थी, उसके साथ इनजस्टिस हो रहा था, तो ये फ्रेंड्स उस वक्त सामने क्यों नहीं आया? कुछ सामने आकर उसको कजोल करना चाहिए था, उसको कॉन्सल्ट करना चाहिए था, उसको संभालना चाहिए था। एज ए दोस्त को ये मौका आने ही नहीं देना चाहिए था। कितना यंग, टैलेंटेड, डिजर्विंग, सेल्फ मेड, एडुकेटेड, ऐसा बढ़िया लड़का सुशांत सिंह राजपूत को अगर जो किया या जो हुआ उसके साथ, वो घटना घटनी ही नहीं चाहिए थी। नहीं, घटनी नहीं चाहिए थी। No, but that is because of the people who were torturing him. That is because of the people who were sidelining him. That is because of the people who were sabotaging his career. I call this a worst, I call this a terrible crime. You see, Mr. Shotgun, you said Sushant was a scene stealer. Aapka word tha, he was a scene stealer, and he had a bright future. But Mr. Sinha, last year during his film Son Chidiya, when it was getting released, Sushant was pleading to his fans, saying, please watch my film. And his exact words were, if you don't watch it, then they will throw me out of Bollywood. I have no godfather. I have made you all my gods and my fathers. Watch it at least if you wish I do survive in Bollywood. Look at his words. If you don't watch it, then they will throw me out of Bollywood. Tell me, I am asking you this question today. Let me take you back to 1965 maybe, or 1970. How would you have felt if you had to, before the release of any film of yours? I watched all your films, Shotgun. If you, before your film, would have had to go with folded hands saying, if you don't watch, they will throw me out of Bollywood. क्या ये evident नहीं है कि Bollywood has got broken up into two parts, people with those big connections and people who don't? If you allow me, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि so called Bollywood जो है, वहां पे दो पार्ट्स में तीन पार्ट हैं। एक पार्ट तो वो है जो सेकुलर है, यहाँ पे सक्सेस और फेलियर को देखता है। क्या बिहारी शत्रुघ्न सिन्हा भी चलेगा अगर कामयाब है तो, और पहाड़ी डैनी डेंजुम्बा भी चलेगा, और हमारा अपना प्यारा लाडला बंगाली मिथुन चक्रवर्ती भी चलेगा अगर सक्सेसफुल है तो। और सक्सेसफुल नहीं है तो कितनी भी अच्छी शक्ल सूरत लेकर आए वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते। और दूसरा पार्ट है, बहुत ही सेकुलर इंडस्ट्री है, यहाँ पे जरा भी थी कम से कम हमारे वक्त में कुछ साल पहले तक, यानी जहां पे कोई हिंदू मुस्लिम नहीं, मजहब नहीं, जात नहीं, जाति नहीं। कमल हसन डांसर, कमल हसन एक्टर मुस्लिम है कि हिंदू है, किसी को उसको परवाह नहीं, न जानने की कोशिश। न कमल डांस मास्टर थे, हिंदू थे, मुसलमान थे, हमें भी कई सालों तक पता नहीं चला। जब तक स्टारडम चलता है तब तक तो ग्रुप का डंडा, पापा जी तुसी छा गए, पापा जी तुसी आ गए, कमाल पोप हो, तुसी पोप हो। लेकिन जब उसकी फिल्म नहीं चलती तो धीरे धीरे वो लोग पीछा छोड़ देते हैं। सुशांत सिंह राजपूत के बारे में भी मैं देख रहा था, वो ग्रुप का शिकार हुआ, जो लोगों ने बताया मुझको, और जिन लोगों ने उनके साथ ज्यादती की, वायदा खिलाफी की, प्रॉमिस किया और प्रॉमिस नहीं निभाया, वायदा निभाया, मैं समझता हूं उसके इस जिंदगी के बाद जो कुछ हुआ, मैं समझता हूं उसके लिए बहुत हद तक वो लोग जिम्मेदार हैं। वो कौन है? ये कौन है वो लोग? ये कौन है वो लोग? ये कौन है वो लोग जिनके बारे में आप भी बोल रहे हैं, सुशांत सिंह राजपूत भी बोल रहे हैं, मगर आप लोग नाम नहीं ले रहे? मैं आपको कह रहा हूं कि एक प्रोडक्शन हाउस है YRF, जिसके साथ सुशांत की 3 फिल्म की डील थी, 2 फिल्म के बाद उसको साइडलाइन कर दिया। क्या उनका नाम लेना भी गलत है? क्या नाम शत्रुघ्न सिन्हा भी उनका नाम नहीं ले सकते? शत्रुघ्न सिन्हा उनसे सवाल नहीं कर सकते तो कौन करेंगे? आज मुझे ताज्जुब इस बात से होती है
शत्रुघ्न सिन्हा जी कि आज अजय देवगन हो, अक्षय कुमार हो, शत्रुघ्न सिन्हा हो, अमिताभ बच्चन हो, कोई हो, जितने बड़े बड़े नाम हैं, कोई नहीं बोल रहे, इसमें कंगना बोल रही है। इसका जवाब मुझे दीजिए, ऐसा क्यों है? क्यों ऐसा लग रहा है? इसलिए ऐसा है कि कंगना का अपना एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है, वो उनको बहुत नजदीक से जानती हैं, उनके बहुत सारे लोगों के खेल तमाशे देख चुकी हैं और कई बार उसको झेल चुकी है वो। इसलिए मैं उतना नजदीक नहीं रहा हूं, हम लोग काफी सीनियर हैं, हमें पूरी जैसे विषय की, टॉपिक की, सब्जेक्ट की गहराई की जानकारी नहीं है हम लोगों को। तो अननेसेसरी जब तक, या तो आप लोग बताइए, आप लोग बताएं और पता चलेगा कि हाँ जिन लोगों ने किया है या इन लोगों ने किया है तो हम जरूर आवाज बुलंद करेंगे। लेकिन अभी तो संभावनाएं हैं, अभी तो इंक्वायरी है, इन्वेस्टिगेशन है, बात कंप्लीट नहीं हुई है। कंप्लीट होगी तो आप जानते हैं ना मैं डरता हूं ना डरने वाला हूं। शत्रुघ्न सिन्हा जी, आज रिपोर्ट ये भी आया है कि आदित्य चोपड़ा के स्टेटमेंट और संजय लीला बंसाली के जो स्टेटमेंट है पुलिस के सामने बिल्कुल अलग है। और ये भी रिपोर्ट आ रही है कि सब लोगों की कोशिश ये है कि सुशांत सिंह राजपूत पे जो भी है, सुशांत सिंह राजपूत के मेंटल स्टेट पे डाल दीजिए इसको, दोषी सुशांत सिंह राजपूत है। आज ये सही नहीं है, मुझे नहीं लगता है ये सही है। सब कुछ सुशांत सिंह पर धकेल देना, ये तो हमें पता ही नहीं कि सुसाइड है कि नहीं, मगर लाइक दे से अंग्रेजी में कहते हैं डेड मैन डज नॉट स्पीक। जो हमारे साथ है ही नहीं, वो तो अपनी तरफदारी नहीं रख सकते ना, अपनी बात सामने नहीं रख सकते। क्या ये नाइंसाफी नहीं है कि सुशांत पर सारी ब्लेम दे दें? और इंटरनल जो बॉलीवुड जिसको आप कहते हैं उसको सोचना चाहिए कि क्या इधर कल्चर ऐसा बन चुका है। एक बात आपको कहता हूं मैं, और ये सवाल कई बार आ चुका था। एक मिनट में इंटरवीन करना चाह रहा हूं। बोलिए प्लीज 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 प्लीज। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो आप नाइंसाफी है, यकीनन नाइंसाफी है, लेकिन इसके लिए जो पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है, चाहे जो भी एजेंसी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उनको खड़े होकर बोलना होगा कि ये नाइंसाफी हुई और किन किन लोगों ने की है। जब उन लोगों ने एविडेंस, वो लोग जब एविडेंस के साथ बात करेंगे कि हाँ इसने किया, इन्होंने किया है, तो आप और हम और जोर से बोल सकेंगे। अभी ये पुलिस का काम है, इन्वेस्टिगेशन का काम है। ये इस बात को जानते हुए कि हो सकता है पुलिस में उतने लोगों का विश्वास ना हो कई वजहों से, चाहे यूपी में जो कांड हुआ, चाहे इधर हुआ, उसकी वजह से पूरे फोर्स जिसकी हम सब इतनी इज्जत करते हैं, अचानक वो विश्वास हिल जाता है कि अब। लेकिन साथ में दूसरा ऑप्शन क्या है, आपको भी मैंने सुना, आपने कहा सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है, बट सीबीआई इंक्वायरी भी मान लीजिए आप कि वो सीबीआई कोई होली काउ नहीं है, बेस्ट काउ जरूर है, बेस्ट काउ सारे एजेंसीज में है, मगर होली काउ नहीं कर सकते। मैं होली काउ नहीं कह रहा, मगर मैं ये कह रहा हूं कि मैंने तो देखा है तस्वीरों में कि ये मुंबई पुलिस के बड़े बड़े अफसर पार्टीज में जाते हैं, घूमते फिरते हैं, बॉलीवुड के साथ अप डाउन इनका चलता रहता है, बहुत करीबी रिलेशनशिप है। मुझे नहीं लगता कि भारत के लोगों में विश्वास होगा कि वही मुंबई पुलिस जिसके लिए फिल्म स्टार्स कॉन्सर्ट करते हैं, जिनके पार्टीज में जाते हैं। एक केस ये भी था, मैं फिल्म स्टार का नाम ले रहा हूं, भारत के बहुत बड़े फिल्म स्टार है, केस चली थी उनके खिलाफ, मुंबई में उनको पकड़ना था, 3 साल तक मुंबई पुलिस ने पकड़ नहीं पाई। फिर तस्वीरें आई कि बहुत बड़ा मुंबई पुलिस का अफसर, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, वो पार्टी में थे उसी फिल्म स्टार के साथ। तो मुझे तो डाउट है, इसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाली बात हो जाती है, इसलिए मुझे विश्वास नहीं है। आप पूछ लीजिए, मैं पोल कर लेता हूं, लोगों को विश्वास नहीं होगा कि वही मुंबई पुलिस इंपार्शियल इंक्वायरी कर पाएगी कि नहीं। व्हाई शुड देयर नॉट बी अ सीबीआई इंक्वायरी? सीबीआई इंक्वायरी विल बी बेटर तो होगा, ये तो मानेंगे आप, बेटर तो होगा ना। यस, मैंने कहा होली काउ नहीं है कि बेटर है, जरूर है, बेटर है उसमें। लेकिन ये भी देखिए, खासकर जैसे तमिलनाडु में हुआ, बाप बेटे की डेथ जो टॉर्चर से हुई आपके लॉकअप में, यूपी में जो हुआ, जिस तरह से हुआ, जिसके साथ हुआ उसके बारे में उसका कोई सहानुभूति नहीं है, जिस तरह से हुआ, ये काम न्यायालय का था, कोर्ट्स का था कि कैसे क्या करना था, अचानक उसको ठोक दिया गया। उसी तरह से मुंबई में से बहुत सारे कांड होते, तो आप ठीक कह रहे हैं, आई टेंड टू एग्री विथ यू कि पुलिस का नहीं है तो बेहतर एजेंसी को दिया जाए। अगर लोगों का अगर टैली नहीं कर रहा है, 2 आदमी का, आपने कहा कि वो कुछ और कह रहे हैं और वो कुछ और कह रहे हैं सुशांत, और लोग सुशांत सिंह राजपूत पे अगर दोष मढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तब तो मैं समझता हूं, जैसा कंगना ने भी कहा, लड़की बहुत अच्छी लड़की है, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत सेल्फ मेड है, मैं उसकी बहुत कदर करता हूं। और आपने कहा तो मैं समझता हूं कि ये सीबीआई के लिए केस बनता है, उसको मैं भी रिकमेंड करता हूं।
दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए सीबीआई को केस देना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात आपने कही। दूसरी बात यह है कि आप you speak very openly and you have never been part of any group or lobby. मेरे खुद आपके साथ कई मामले में मुझे लगता है कि you were an ambitious politician, but you are not really a politician. You are not really a politician, if I can tell you this, If you ask me, you are probably too much of your own person. इसलिए in the BJP also you've not really been able to fit into any group or camp, and whatever you've had your differences. That's all right. That's the person that you are. My question is, you speak openly. शॉटगन इन अप्रैल 2019, अप्रैल 2019 में, और मैं दोनों इंग्लिश हिंदी में आपको सवाल पूछ रहा हूं क्योंकि आजकल हमारा हिंदी चैनल है रिपब्लिक भारत, उसमें भी कई लोग आपको देखना चाहेंगे। अप्रैल 2019 आपकी हिंदी पहले से बहुत इंप्रूव हो गई है। ये मैं अंग्रेजी तो आपकी अच्छी थी, आजकल आपकी हिंदी भी बहुत अच्छी हो गई है। बधाई हो, मुबारक। मैं उस पे काम कर रहा हूं। आई एम वर्किंग ऑन इट। इट्स वर्क इन प्रोग्रेस। नहीं बहुत इंप्रूव किया। गॉड ब्लेस। अब देखिए, मैं तो ये हमेशा कहता हूं कि अगर आपकी जुबान साफ ना हो मगर आपकी दिल साफ हो, अपनी नीयत साफ हो, तो फिर बाकी सब कुछ ठीक हो जाता है। अप्रैल 2019 में यू हैड प्रेज्ड कंगना। आपने कंगना की तारीफ की थी। आपने कहा था, as far as Kangana is concerned, she's a remarkable self-made lady. She made it on her own terms against all odds in a male-dominated industry. और ये मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री है, यहाँ पे एक्ट्रेस का इतना सामने उभर के आना, प्रोड्यूसर बनना बहुत बड़ी बात है। आज मुझे लगता है कि कंगना के मेरे इंटरव्यू के बाद एक लॉबी उसके पीछे पड़ गई है। Where do you stand on that? It's become Kangana versus all. Is that fair? Where do you stand? Do you support her? Of course, क्योंकि वो सेल्फ मेड है, मैं सेल्फ मेड हूं, धर्मेंद्र सेल्फ मेड रहे, अमिताभ बच्चन सेल्फ मेड रहे। यहाँ लोग किसी के गॉडफादर, किसी के साथ आने की जरूरत नहीं पड़ी हमारी। न ग्रेस ऑफ गॉड रहा। ऐसे जितने बड़े बड़े नाम रहे, राजेंद्र कुमार, धर्मेंद्र। एक चीज और इसी बात पे कहना चाहूंगा, कंगना के इस टॉपिक पे आने से पहले, सुशांत सिंह राजपूत की बात होती रही, मैं कई जगह सुनता रहा और देखता रहा कि लोगों ने कहा कि साहब वो तो छोटे शहर से आया था, स्मॉल सिटी की, छोटे शहर की मानसिकता। व्हाट छोटे शहर की मानसिकता? एग्जैक्टली। पटना इज ए ग्रेट सिटी, बिहार इज ए ग्रेट स्टेट। और उससे बड़ी बात है कि जितने बड़े लोगों का आप नाम लिया, और ज्यादातर अमिताभ बच्चन आप ले लें, धर्मेंद्र का, आप शत्रुघ्न सिन्हा का नाम ले लें, सारे जो आए हैं ज्यादातर लोग और कामयाब लोग वो सो कॉल्ड स्मॉल सिटी से ही आए हैं, कोई बहुत बड़े सिटी से नहीं आया है। सो आफ्टर हैविंग सेड सो, आई वुड से कंगना के बारे में मैंने 2019 में, जैसा आपने कहा कि मैंने तारीफ की थी अप्रैल में, मैं फिर 2020 में जुलाई में उसकी बहुत तारीफ कर रहा हूं। और मैं समझता हूं कि कंगना जो है उसने उन पंक्तियों को चरितार्थ किया है, when going gets tough, the tough get going। उसने अपने आप को आगे बढ़ाया है इन मुसीबतों के बीच में से झेलते हुए और खेलते हुए। आज ज्यादातर लोग को मैं देखता हूं वो कंगना से इसलिए कंगना के खिलाफ बोलते हैं या कंगना की खिलाफत करते हैं क्योंकि उनको अंदर उनको कंगना से बहुत जेलसी होती है कि हमारे रहमो करम के बगैर, हमारी मर्जी के बगैर, हमारे ग्रुप में शामिल हुए बगैर, हमारे आशीर्वाद के बगैर, हमारे पुश के बगैर ये लड़की इतना आगे कैसे निकल गई। इस बात की उनको चिढ़ होती है, जलन होती है, कॉम्प्लेक्स होता है, रादर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। इसलिए ये जो है ऐसा एक एग्जाम्पल कंगना ने दिया, वाकई उसने, आप कह सकते हैं इस मामले में मर्दों की धर्मेंद्र, लड़कियों की धर्मेंद्र है, धर्म जी की तरह उसने अपने आप को साबित करके दिखाया है। एंड गॉड ब्लेस हिम। Well, this is very, very, it's wonderful of you to say that. आपने जो ये बात कही, it will be a big encouragement। और मैं आपको बधाई देता हूँ। I'd like to compliment you कि आप एक पहले बड़े स्टार हैं, बहुत बड़े स्टार हैं। आप तो स्टार नहीं है, आप लेजेंड हैं, आप सुपरस्टार के स्टार हैं। मगर आपने सामने आके ये जो आपने बात कही कंगना के बारे में, इट इज़ जेन्युइनली गोइंग टू बी वेरी मोटिवेटिंग फॉर हर, वेरी एनकरेजिंग फॉर हर। क्योंकि कंगना बोलती रही, और मैंने उस इंटरव्यू के बारे में और उसके बाद में भी मैंने सोचा, और कंगना ने कहा कि सुशांत को सिस्टमैटिकली शंट किया गया, मतलब कि सुशांत को दरवाज़ा दिखा दिया गया क्योंकि वो चापलूसी नहीं करता था। और कई लोग ऐसे हैं इंडस्ट्री में, और शायद आप अपने एक्सपीरियंस से भी बोल पाएंगे, जो बिना चापलूसी के
अपने टैलेंट के बेसिस पर अपना करियर बनाना चाहते हैं, मगर इफ यू आर नॉट पार्ट ऑफ अ ग्रुप देन पीपल सैबोटाज योर करियर। ये भी तो होता है ना। ये क्या आपके जमाने में ऐसा होता था कि अभी ज्यादा हो रहा है? कई लोग कह रहे हैं पहले नहीं होता था। और उस दिन किसी ने मेरे प्रोग्राम पे ये भी कहा, मुझे याद नहीं है कौन, कि मुझे कहा किसी ने कि अगर अमिताभ बच्चन के साथ कोई करते या दिलीप कुमार के साथ कोई करते कि आप हमारे साथ पिक्चर बनाएंगे तो कहीं और नहीं कर सकते। यू सी, यू कैन ओन टैलेंट। तो ऐसा क्या पहले होता था कि अब ज्यादा हो रहा है? होता था पहले, अब हो सकता है ज्यादा होता हो। कि पहले भी सुपरस्टार राजेश खन्ना, हमारे दोस्त थे राजेश खन्ना, बहुत बढ़िया इंसान, और उनका एक ग्रुप था। और वहां पे ये होता था कि भाई वो दूसरे हीरो के पास नहीं जाना चाहिए। राजेश खन्ना नहीं बोलते थे मोर लॉयल देन द किंग। वो होता था कि साहब वो आके कहते थे सर वो वहां जा रहा है, अच्छा फिर देखते हैं, उसको लटकाओ, उसको डेट मत दो। ऐसा हमने सुना शम्मी कपूर साहब के जमाने में भी ग्रुप बनता था। ऐसे बहुत लोगों के टाइम में ग्रुप धर्मेंद्र इस तरह के ग्रुपिज्म से बाहर है। बड़े भाई धर्मेंद्र, मैं इस तरह के ग्रुप से बिल्कुल बाहर रहा, और एक कंप्लीट एक्टर है। जिस एक्टर को लोग भुलाने की कोशिश कर रहे हैं आजकल, लेकिन बहुत ही बेहतरीन है। और मैं समझता हूँ 99% एक्टरों से बढ़िया एक्टर है वो गोविंदा, कंप्लीट एक्टर। उसके साथ भी देखिए धीरे धीरे क्या हुआ और कैसे किया गया उसको। हालांकि इतना टैलेंटेड है वो। कैसे हुआ? जरा आप बताइए। गोविंदा तो नहीं है, बट व्यूअर्स वुड वांट टू नो व्हाट हैपेंड। नहीं, जिस तरह से गोविंदा ने अपने आप को डेवलप किया, यानी किशोर कुमार की तरह, जैसे मैं सोनू निगम को कंप्लीट एंटरटेनर मानता हूं, किशोर कुमार द ग्रेट जीनियस, उसी तरह से गोविंदा जो है अपने पैरों पे खड़ा हुआ, खुद ही शिष्य, खुद ही गुरु। जिस तरह से सीखता गया कि उसने डांसिंग में खासकर और अपने टाइमिंग्स के मामले में एक इंस्टीट्यूशन बनकर सामने आया। अच्छे यहां से लेकर साउथ इंडिया में लोग गोविंदा की नकल करने लगे और गोविंदा को फॉलो करने लगे। लेकिन गोविंदा के साथ भी सुना बाद में, जब थोड़ा वक्त का उतार चढ़ाव हुआ, तो गोविंदा को उन्होंने जिस तरह से शंट करना शुरू किया, जिस तरह से अलग करना शुरू किया, गोविंदा के फिल्में जब सुना, गोविंदा को मैं खुद सुन रहा था, उसकी चल रही फिल्म को टेक ओवर कर लिया गया कुछ लोगों की वजह से, और दूसरे लोग उस फिल्म को लेकर चले गए, यानी जो फिल्म ऑलरेडी कुछ बन चुकी थी, ऐसा भी उसको झेलना पड़ा। तो फिल्मों में ऐसा होता है, अभी ज्यादा हो रहा है। और अभी जो सुन रहा हूं यहाँ पे, और खासकर हमारी ये कंगना के साथ, कंगना के एक चीज और बता दूं, सुशांत सिंह राजपूत के साथ आप देखा होगा आपने, हालांकि मैं उसको, उनके घर वालों को और सुशांत सिंह के को आत्मा को प्रणाम करता हुआ, जो उनके मेकर्स को मैं बहुत बधाई देता हूं। 24 तारीख को सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म आने वाली है, दिल बेचारा। लेकिन मैं जब देखता हूं परेशान होता हूं, यंगर जनरेशन को देखता हूं, तो आज यंगर जनरेशन बहुत ही दुख है उन लोगों को सुशांत सिंह जाने का। मुझसे कई लोग पूछते हैं कि यंगर जनरेशन इतना क्यों आइडेंटिफाई कर रहा है, तो मैं हमेशा कहता हूं इसलिए कर रहा है कि एक तो लगता है कि उसके सुशांत सिंह के जाने के साथ साथ उसके एस्पिरेशंस की डेथ हो गई, उनके महत्वाकांक्षाओं की डेथ हो गई, उसके होप की, यंगर जनरेशन का होप था, उसकी डेथ हो गई। तो लोग आइडेंटिफाई करते हैं, और जिस तरह से बदनाम करने की कोशिश की गई सुशांत सिंह राजपूत को, वो भी उस फेज में, जो फेज उसका उतना अच्छा नहीं था, लेकिन आने वाला फेज उसके बाद बहुत ही अच्छा होता। उस फेज से लोग कंगना को भी, कंगना के बारे में कहते हैं जो गलत है, निंदनीय है, शर्मनाक है, दर्दनाक है, कि आप कहते हैं कंगना के बारे में कि वो भी डिप्रेशन में, सुना कौन कौन लोग क्या क्या बोल रहा है, वो भी करेगी और फलाना करेगी। ये क्या मतलब है? जजमेंट में शुरू में कहा था आप सर्टिफिकेट इशू करेंगे, आप किसी को हौसला अफजाई नहीं कर सकते, मत कीजिए। आप किसी को इस तरह से कंडम करेंगे, इस तरह से आप उसका कैरेक्टर असैसिनेशन करेंगे, उसकी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश करेंगे। आप हैं कौन? आपसे उसने कौन सा सहारा लिया? आपसे उससे पैसा लिया? आपसे उसने कौन सा आपका आशीर्वाद, आपका पुश लिया? उसने जब अपने ऊपर डिटर्मिनेशन के ऊपर, कमिटमेंट के ऊपर, अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर, अपने पैशन के ऊपर जिस तरह से वो आई है, और उसी तरह से जैसे आ रहा था हमारा अपना सुशांत सिंह राजपूत, बहुत बड़ा स्टार था, और बहुत बड़े स्टार और बनने की उसके अंदर संभावनाएं थी। उन संभावनाओं को जैसा लगता है कुचल दिया गया है। और जब कंगना उसके साथ बात करती है, तो दोनों को एक ही ग्रुप
ग्रुप में आइडेंटिफाई लोग करते हैं कि देखिए इसके साथ हुआ। कंगना चूंकि अब ज्यादा बोल्ड है, अभी बनी हुई है, अच्छे से उसने पेश किया और आप जैसे दुनिया के लोगों का साथ है उसके साथ, तो अभी उसका उस आशीर्वाद से वो अच्छे से निकल रही है। वरना इंडस्ट्री इस मामले में बहुत ही जालिम है। उस मामले में जैसे मैंने कहा सिर्फ सक्सेस को पहचानती है और फेलियर को बिल्कुल दुत्कारती है। यही आपकी बात सुनकर मुझे यही लग रहा है कि बहुत विशियस इंडस्ट्री है ये, बहुत विशियस इंडस्ट्री। और एक बात आपको कहूं शॉटगन जी, आप हमसे बहुत बड़े हैं, आपको मैं बहुत मानता हूं, मगर मैं इस आपके इंडस्ट्री के बारे में कुछ नहीं जानता। मुंबई में रहता हूं मगर मैं तो ज़्यादातर पॉलिटिकल जर्नलिस्ट हूं, मैं बॉलीवुड के बारे में ज़्यादा नहीं जानता। मगर मुझे जो शनिवार के बाद जो फीडबैक मुझे आया, बहुत लोगों ने, lot of people have written to me saying thank you for picking this up and thank you for giving Kangana a voice, कि आपने कंगना को मौका दिया। और यही बात जो आपने कही ना कि यंगर जनरेशन बहुत डिसअपॉइंटेड है, they are feeling crushed, they are feeling crushed because मुझे अंदाजा नहीं था यंगर जनरेशन कितनी आइडेंटिफाई करती थी सुशांत जैसे कलाकार के साथ। मतलब they are seeing their own success story in this, you know, for someone without any background from Bihar to achieve what he did with pure merit or unconventional आदमी, they really identified with him and almost as if there is a tsunami of love for him now. I don't think this is going to stop. मुझे नहीं लग रहा है ये बंद होने वाला है। कई लोग चाहते हैं ये बंद हो जाए, मगर जिस तरह से सवालें उठाई जा रही हैं, I don't think it's going to stop. What do you think? अर्णव, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ये जो प्यार मोहब्बत दोस्ती दोस्ताना ये फिल्म इंडस्ट्री में सिर्फ पर्दे पे पाई जाती है और पर्दे तक पाई जाती है। पर्दे के अंदर या पर्दे के ऊपर ये सब बातें खत्म हो जाती हैं। यहाँ मेरे दोस्त सुभाष जी कहते थे और अच्छा कहते थे कि फिल्मों की दोस्ती जो संबंध वो लिव एंड लाइसेंस की तरह होता है। जितने दिन फिल्म में काम है, जब तक काम चल रहा है या जब तक आप चल रहे हैं, जिस दिन फिल्म लड़खड़ाई या आपका करियर लड़खड़ाना शुरू हुआ, ये संबंध ये रिश्ते गायब हो जाते हैं। तो रियल लाइफ में प्यार मोहब्बत दोस्ती दोस्ताना रियल लाइफ में ही होती है और रियल लाइफ तक ही होती है। रियल लाइफ में यहां नहीं पाया जाता। ये इंडस्ट्री जैसा आपने कहा, आप ही को सपोर्ट करते हुए मैं कह रहा हूं कि बहुत विशियस सर्किल है यहाँ पे। एक दूसरे के खिलाफ जब होते हैं तो किसी हद तक जा सकते हैं। लोग कहते हैं कि शो बिजनेस और पॉलिटिक्स दोनों कट थ्रोट इंडस्ट्री है दोनों जगह, लेकिन मैं आपको यकीन से कह सकता हूं विथ ड्यू रिस्पेक्ट सम ऑफ आवर सीनियर्स कि सबसे ज्यादा अगर कट थ्रोट हमने देखा है पाया है तो वो फिल्म इंडस्ट्री में पाया है, शो बिजनेस में पाया है। So the film industry is more cutthroat than politics, and you have had experience of both. जी, मैं वही कह रहा हूं। और उसी में से उभर के आ जाना कंगना जैसी लड़की का, कंगना जैसी कलाकार का, कंगना जैसे स्टार का बहुत ही सराहनीय है, प्रशंसनीय है और अनुकरणीय है। लोगों को कॉपी करना चाहिए, वो गट्स लेना चाहिए, वो हिम्मत लेनी चाहिए कि देखो इस तरह से है, बगैर इधर उधर कुछ किए हुए रेम जिस तरह से चली है और जो लोग फॉलो करते हैं उन्हें। कंगना ने इस लाइन को भी चरितार्थ किया है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। उसने दिखा दिया कारवां आज उसके पीछे है ये करके। वही लोग नहीं है जो जले भुने हैं, जो चिढ़े हुए हैं, जो उससे बहुत गुस्से में हैं, जो उससे इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स फील करते हैं। अरे लड़कियों के, अरे वुमेन एम्पावरमेंट का जमाना है भाई। अगर वुमेन एम्पावरमेंट के जमाने में अगर हमारी अपनी कंगना इस कदर आगे बढ़ रही है, चाहे जो लड़कियां आगे बढ़ रही हैं उनको सलाम करना चाहिए, उनको इंकरेज करना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए। यही मैंने एक चीज और कही कि सुशांत सिंह राजपूत को मैं देख रहा हूं, जब मैं थोड़ा सा मैं रिपीट कर रहा हूं कि देख रहा हूं कि इतने यंगर जनरेशन के लोग हैं, बहुत हताश हैं, बहुत परेशान हैं। और खासकर जब तक ये बात चल रही थी कि उन्होंने सुसाइड की, तब तक इस बात से भी बहुत उचाट थे कि कैसे 34 साल का आदमी इतना पढ़ा लिखा, इतना स्मार्ट, इतना अच्छा, इतनी अच्छी फैमिली से और हालात भी ठीक थे उसके, आखिर उसको क्या वजह हुई कि सुसाइड करने की जरूरत पड़ी। और अब जब आपने कहा कि बात उससे गहराई से उससे आगे भी है, तब लोग ये कहते हैं कि उसकी डेथ में
उनको लगता है कि हमारे यंगर जनरेशन का एम्बिशन चला गया, मर गया, ये महत्वाकांक्षा मर गई, होप मर गया, एस्पिरेशंस मर गया, ये करके, और एकदम उनको समझ नहीं रहा। इसीलिए मैंने शायद, और आपने भी शायद जमाने के बाद देखा है कि इतनी देर तक और इतनी दूर तक बात गई है सुशांत सिंह राजपूत की कि मैंने इसके पहले कैरियर में नहीं देखा था। और अभी अभी आपने देखा होगा, इतना प्यारा, इतना अच्छा, इतना ग्रेट एक्टर, आपका और हमारा भी बहुत फेवरेट ऋषि कपूर, चाहे उसके पहले इरफान खान जी, ये लोग भी गए, जो बहुत दुख हुआ, बहुत तकलीफ हुई, वंडर एक्टर्स बोथ ऑफ देम ऐसे। लेकिन ऐसी कंट्रोवर्सी नहीं हुई, ऐसी चिंता नहीं हुई, ऐसी फिक्र याद बहुत हुई, तकलीफ बहुत हुई। लेकिन ये जो आज जो चल रहा है कि एक एक घर में उसकी बात हो रही है, एक एक जवान दिल उसके लिए बात कर रहा है, एक एक यंगर जनरेशन का इंसान, एक एक आज का लड़का, सब लड़कियां, सारे घरों में चल रहा था। अपना परिवार का एक अपना बच्चा जो है सबको रोता हुआ, बिलखता हुआ, बिछड़ के चला गया, ये हो रहा हर घर में। ये आज तक बात, और जितना जैसे आपने कहा 24 को उसकी फिल्म रिलीज है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि 24 को उसकी फिल्म रिलीज पे बहुत जोरदार असर पड़ेगा इन भावनाओं का, और खासकर यंगर जनरेशन का, स्टूडेंट्स का, ये लोग देख रहे हैं, और खासकर उन लोगों का जो कलाकार बनना चाहते हैं, जो फिल्मों में आना चाहते हैं, टेक्नीशियंस बनना चाहते हैं, डायरेक्टर्स बनना चाहते हैं, शो बिजनेस में आना चाहते हैं, उन लोगों को तो ऐसा लग रहा है कि उफ, दे आर फीलिंग हेल्पलेस कि क्या हो गया, कि क्यों ऐसा हुआ, अब हमारा क्या होगा। हालांकि आज कोरोना काल है, आज मैं खुद कहता हूं फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से कि अब प्लान बी की तैयारी करो। अब ये सिर्फ प्लान ए पे रहोगे, ये शूटिंग और वो शूटिंग, पता नहीं कब क्या होगा। साथ साथ अपने टैलेंट का सही इस्तेमाल करो, और प्लान बी का इस्तेमाल सोचो कि प्लान बी क्या होना चाहिए, वर्क इट आउट। लेकिन उसके पहले ये चला गया, अभी हजारों लाखों लोग कैन दिस बी बेरिड, ये मेरा सवाल है क्या, क्योंकि कई लोग ये कह रहे हैं कि ये मामले को किसी तरह से दबाना पड़ेगा, हमें ठंडा हो जाएगा। मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है हर दिन गुस्सा बढ़ रहा है, सवालें ज्यादा हो रही है। मुझे भी नहीं लगता है, और इन लोगों को एक सबक मिलना चाहिए, जो लोग जिम्मेदार हैं, जिन लोगों ने भरपूर इस जवानी में जिस तरह से इतने अच्छे कलाकार को, जिसका भविष्य और भी बहुत अच्छा था, इतने उज्जवल भविष्य के कलाकार को इस तरह से प्रताड़ित किया। प्रताड़ित इज द राइट वर्ड, जिसके लिए मैं नहीं कह सकता इंग्लिश में क्या होगा इसका, प्रताड़ित किया, इतना उसको सताया, तंग किया कि आज उसको दुनिया छोड़ देनी पड़ी। इन लोगों को सबक मिलना जरूरी है कि आने वाले दिनों में किसी परिवार के साथ या किसी महत्वाकांक्षी के साथ, किसी भी यंगर जनरेशन या हमारे फैमिली के किसी संतान के साथ, जिसको कि शो बिजनेस का, फिल्मों का खासकर, या जीवन में जिसको आगे बढ़ना है, उसके साथ ऐसा ना हो। मगर जैसे कंगना ने मुझे बोला कि करण जौहर ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एक फोरम में कहा कि अगर इफ शी डजंट लाइक इट, वो निकल जाए, लेट हर लीव बॉलीवुड। मेरा ये कहना है कि करण जौहर कौन को होते हैं ये कहने के लिए कि कंगना शुड लीव बॉलीवुड, और ये भी कहा वुमन कार्ड प्ले करती है, विक्टिम कार्ड प्ले करती है। क्या वुमन कार्ड, क्या विक्टिम कार्ड? और जो लोग अपने आप को फेमिनिस्ट कहते हैं बॉलीवुड में, किसी ने सवाल नहीं उठाया उस पर। यानी कि एक तरह से हाउंडिंग, अब हाउंडिंग को हिंदी में क्या कहा जाए, सब लोग मिलके एक सब लोग मिलके, इफ यू हाउंड वन पर्सन, एक व्यक्ति के खिलाफ आप पीछे पड़ जाए, या तो इनको साइडलाइन करेंगे या बाहर कराएंगे, या इनको डिप्रेशन में डालेंगे, फिर कहेंगे ये परवीन बाबी जैसी इनकी एंड होगी। मतलब एक प्लान्ड कंस्पिरेसी लगती है मुझे। आपने जो अपने जमाने के बारे में कहा वो ऐसा नहीं था, आपने कैंप्स के बारे में बोला, इस हद तक तो नहीं था ना, ये तो बहुत प्लान्ड लगता है। बिल्कुल, क्योंकि हमारे जमाने में ये कॉफी विद अर्जुन भी नहीं था। हमारे जमाने में ये जो कॉफी विद अर्जुन चलता है, इस तरह के तरह तरह प्लान इवेंट्स होते हैं, ये भी नहीं था। और यहीं से बहुत सारी बातें निकलती हैं और खड़ी होती हैं। अभी एक बात कहना चाहूंगा कि जिनका भी जिक्र हो रहा है, सब तो हैं अपने ही परिवार के, इन द सेंस हमारी सोसाइटी के हैं, लेकिन किसी की जागीर नहीं है फिल्म इंडस्ट्री। बहुत खूब। किसी के पिताजी की जागीर नहीं है कि आप कह देंगे इसको नहीं रहना फिल्म इंडस्ट्री। आप हैं कौन?
आप खुद कैसे आए हैं? आपने खुद क्या किया जीवन में? एक दो फिल्में अगर आपकी अच्छी चल गई हैं, उसके बाद की फिल्में कहाँ है? बाद में फिल्में बनाने का साहस क्यों नहीं हो रहा है? हौसला क्यों नहीं हो रहा है? कि आपको डर लगता है कि उस लेवल तक हम फिल्म नहीं बना सके? आप कौन होते जो मैंने शुरू में कहा जजमेंटल सर्टिफिकेट इशू करेंगे? फिल्म इंडस्ट्री आपके पिताजी की जागीर है, ये सबका है। यहाँ जितने टैलेंटेड लोग हैं, टेक्नीशियंस हैं, मेकर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, सबका है, सबका घर है। और आप उस घर के मुखिया नहीं हैं। और खासकर एक लेडी के बारे में ऐसा कहना, एक लड़की के बारे में, और वो भी वुमेन एम्पावरमेंट जिसका मैंने जिक्र किया, उस समय आपका कहना ये कि अगर आपने कहा है कि ये कंगना को ये करना चाहिए और हम उसको बढ़ने नहीं देंगे, उसको ये नहीं, और उसको कॉम्प्लेक्स है, और क्या मतलब है? जस्ट अपने बलबूते पे वो साबित कर रही है, और अब अपने बलबूते पे उसने डायरेक्शन भी कर दिया, उसने प्रोडक्शन भी कर दिया, उसने फिल्म में एक से वैरायटी ऑफ रोल्स किए उसने। आज आप उसके बारे में इस तरह की बातें करते गंदी गंदी, ये तो आपकी अपब्रिंगिंग है बोलता। ये कैसा आपकी अपब्रिंगिंग है? आपके घर में माँ बहन नहीं है क्या? आपको भी सोचना चाहिए कि हमारी माँ, हमारी बेटी, उसके बारे में कुछ ऐसा लोग बोल सकते हैं नहीं, जो कि वो भी गलत होगा, लेकिन बोल सकते हैं। आपको ये आइडेंटिफाई नहीं करते हैं। आप सुशांत सिंह राजपूत के बारे में ऐसा करते हैं, आप आइडेंटिफाई नहीं करते कि आपके फैमिली में कोई लड़का था, चाहे आपके घर में भी कोई आया था पहले, जो शायद कुछ नहीं था, धीरे धीरे स्ट्रगल करके ऊपर आया वो, और आप उसकी संतान हैं, और उसकी संतान होने के बाद आप इस तरह से बात कर रहे हैं। बहरहाल मैं बहुत दुख के साथ कह रहा हूं, बहुत वेदना है इन बातों का मुझे, लेकिन हाँ, अब शो मस्ट गो ऑन, शो तो चलता ही रहेगा, लेकिन कोरोना काल में शो कैसे चलेगा और कोरोना काल के बाद शो कैसे चलेगा और कैसे होगा, इस पे देखना। अनफॉर्चुनेटली फॉर टाइम मुझे आई विल हैव टू एंड द इंटरव्यू, बट मैं कुछ कहना चाहता हूं आपको। जी कहूं? मुझे लगता है दैट you have not changed one bit maybe in the last 50 years at least. Before that I don't know. That's as long as you know your cinema career goes. I am a big fan, you know this. And मैंने कहा कि you've not changed a bit because you speak from the heart, and that matters. Whatever you have said today will go down into history. You are the first superstar to come out in support in the Sushant's case, और कंगना के लिए भी you have come out strongly in support. It means a lot. So I think I'm an even bigger fan. By the way, 1 month back I was watching your old film Kala Patthar. Kala Patthar. You had some fantastic dialogues there, by the way. You know. And we were all watching your film Kala Patthar, and some deadly dialogues there. I've heard some great lines today as well. Thank you for speaking up. On behalf of all the young people, on behalf of the viewers of the Republic Media Network, and all of us who are fighting for justice for Sushant Singh Rajput, genuine thank you to you from the bottom of our heart. Thank you. Thank you for joining me. Thank you very much. जाते 1 मिनट और, if you allow me, अब जो complete कर दूं, कि आप जानते हैं, जैसा आपने कहा, मैं मन की बात नहीं करता हूं, मैं हमेशा दिल की बात करता हूं। उम्मीद करता हूं जो दिल से निकली हुई बात जो है, या दिल से निकली हुई दुआ, सुशांत सिंह राजपूत के फिल्म के बारे में भी रंग लाएगी, जो 24 तारीख को रिलीज है, दिल बेचारा, और साथ ही साथ हमारी प्रार्थना और संवेदना उनके परिवार के साथ है, सुशांत सिंह के समर्थकों, प्रशंसकों और फैंस के साथ है। भगवान सबका भला करे, यही कामना, शुभकामना, मनोकामना और प्रार्थना है आपके इस शो में। Thank you, Shatrughan Sinha ji. Thank you very much. Thank you. You're wonderful. Thank you. God bless you, Arnav. Long live Arnav. Thank you. आपकी हिंदी और अच्छी होती जाएगी. God bless. बहुत बढ़िया. Thank you. Wonderful. Thank you. Thank you. Thank you.